Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to start a new series on the Sales of Good Act 1930. If we talk about the Sales of Good Act, it covers all the transfer of the property in goods. But as we know in India, the transfer of immovable property is governed by the Transfer of Property Act 1882. But if we talk about the movable property, then the transfer of movable property is generally governed by the Sales of Good Act 1930. Initially, the Sales of Good Act was the part of Indian Contract Act 1872. If we talk about the Indian Contract Act, Section 76 to Section 123 were related to the Sales of Good Act. But in 1930, it was repealed in the new act that is generally known as Sales of Good Act 1930. If we talk about the Sales of Good Act, it covers total 7 chapters as well as 66 sections, and it is dealing with all the goods which are movable, and all the transfers of movable goods are governed by the Sales of Good Act 1930. Main purpose of the Sales of Good Act is to develop the trade and commerce in the country, and it has came into force on the 1st July 1930 and extends to whole of India including the Jammu and Kashmir also. If we talk about the section 2 of this Sales of Good Act, it is describing certain definitions. But if we talk about the section 3 of the Sales of Good Act describes about the principles of Contract Act, which is relating to the formation of the contract, performance of the contract, law of damages, etc., which are also applicable to the Sales of Good Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो प्रोविजंस जो आज सेल्स ऑफ गुड एक्ट पे भी अप्लाई होते हैं, उनके बारे में सेक्शन 3 के अंदर डिस्कस किया गया है. इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 2, इट इज डीलिंग विद सर्टेन डेफिनेशंस. जो सेक्शन 2 है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट का, वो कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1 जुलाई 1930 को एग्जिस्टेंस में आया था. यदि हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट की, तो इसके अंदर आपको दो टर्म्स देखने को मिलती है. वन इज कॉन्ट्रैक्ट एंड अनदर इज सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. तो जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के संबंध में सेक्शन 4 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट डिस्क्राइब्स दिस वर्ड. सेक्शन 4 जो है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की परिभाषा बताता है. सेक्शन 4 के अनुसार विक्रय अनुबंध वो अनुबंध है जिसके द्वारा विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले में क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है अथवा उसे हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो जाता है. If we talk about the contract of sale is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property or the ownership in goods to the buyer for a price. So this is the definition of contract of sale that it describes under section 4 of the Sales of Good Act. If we talk about the essentials of the contract of sale, for a contract of sale, there must be two parties which are generally known as buyer as well as seller. If we talk about the contract of sale, there are certain essential characteristics. कौन कौन सी हो सकती है? नंबर 1, that is the essentials of a valid contract, which are यदि जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके संबंध में कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 10 के अंदर बताए गए हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स which are essential for a valid contract, which are essential for also सेल्स ऑफ गुड एक्ट. यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड एक्ट के संबंध में भी वो जो जितने भी प्रोविजंस है जो सेक्शन 10 के अंदर बताए गए हैं किसी भी वैध करार को करने के संबंध में, वो सब यहाँ पे होने भी आवश्यक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, विक्रय का जो अनुबंध है ये एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जितने भी असेंशियल्स हैं जो सेक्शन 10 के अनुसार बताए गए हैं वे यहाँ पे भी शामिल होने चाहिए. जिसमें सेक्शन 10 के अनुसार एक वैध अनुबंध के होने के लिए जितने भी आवश्यक तत्व बताए गए हैं वहाँ वो सारे तत्व सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर भी विद्यमान होने जरूरी हैं. जब भी हम बात करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, यहाँ पर हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आपको दो पार्टीज देखने को मिलती हैं. वन इज बायर एंड अदर इज सेलर. विक्रय का जो अनुबंध है वो दो पक्षों के मध्य ही होता है. एक पक्ष विक्रेता कहलाता है तो दूसरा क्रेता कहलाता है. तो हर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं उनके अंदर आपको क्रेता एवं विक्रेता दो पार्टीज देखने को मिलती हैं. एंड द थर्ड एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज द गुड्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम विक्रय का अनुबंध करते हैं तो उसके संबंध में किसी न किसी माल का होना अनिवार्य होता है. यहाँ पर माल से अभिप्राय
मूवेबल प्रॉपर्टी से है, मतलब चल संपत्ति से है। सामान्यतः माल के अंतर्गत स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, जो ये जितने भी वस्तुएं हैं वो भी शामिल की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है इनको भी मूवेबल गुड्स के अंदर शामिल किया जाता है। If you talk about the another characteristic of the contract of sale, that is price। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी कोई हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो उसके लिए प्राइस का होना अनिवार्य है। प्राइस मीन्स कंसीडरेशन। मूल्य से तात्पर्य माल के मौद्रिक प्रतिफल से है। माल के विक्रय के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है और ये प्रतिफल मुद्रा के रूप में होना चाहिए। एंड अनदर असेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब भी कोई हमको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं, विक्रय का अनुबंध करते हैं, तो वस्तु में निहित जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, उसका हस्तांतरण होना, ट्रांसफर होना अनिवार्य है। वास्तविक हस्तांतरण किसी भविष्य की तिथि पर होना निश्चित हो सकता है। ये हो सकता है कि जो वास्तविक हस्तांतरण है वो किसी फ्यूचर डेट पे किया जाए, परंतु वहां पे हस्तांतरण किया जाना जरूरी है। If we talk about the another essential for the contract of sale, that is the contract of movable property only। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम चल संपत्तियों की बात करते हैं तो चल संपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई होता है, जबकि अचल संपत्तियों के संबंध में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रोविजंस लागू किए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिलेटिंग टू द मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। वस्तु के विक्रय से सदैव चल संपत्ति का होना ही अनिवार्य है यदि हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट के प्रोविजंस को लागू करना चाहते हैं। एंड द लास्ट असेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज द एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद लेता है तो इसे पूर्ण विक्रय का अनुबंध कहा जाता है। यदि वह उसे पसंद आने की शर्त पर लेता है तो शर्त के साथ विक्रय का अनुबंध कहलाता है। तो ये मैंने आपको बताया वो जो विच आर असेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो दस वी कैन से दैट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी सर्टेन असेंशियल्स। फर्स्टली दैट देयर मस्ट बी टू पार्टीज, वन इज सेलर, अनदर इज बायर। अनदर मैंने उसके बाद सेकंड आपको बताया गुड्स, मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी सर्टेन गुड्स विच मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम एंड द मनी। इट also includes growing crops, grass, as well as stock and shares. If we talk about the third essential for the contract of sale, that is price. One of the most essential element for the contract of sale is price. Price means money consideration for the sale of goods. Another essential for the contract of sale, that is the transfer of ownership is must in order to make the contract of sale. प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होना अनिवार्य है। ये हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्यूचर में उसका ट्रांसफर किया जाए। If we talk about the another essential for the contract of sale, that is there must be free consent। मैंने आपको बताया था कि a consent is said to be free consent which is not caused by coercion, fraud, undue influence, mistake and misrepresentation। तो for a contract of sale there must be the consent which must be a free consent which must not be caused by coercion, fraud, undue influence, mistake, and misrepresentation. And the last essential for the contract of sale, that is the contract of sale must include both a sale and agreement to sale। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के तहत सेल भी इंक्लूड किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल भी इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दीज आर द सर्टेन असेंशियल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कुछ असेंशियल बताए गए हैं। इफ टॉक अबाउट द sale and as well as the agreement to sale, there are certain differences between the sale and the agreement to sale। if we talk about the sale agreement to sale, section 4 clause 3 of the sales of good act says that जहां विक्रय अनुबंध में माल का स्वामित्व विक्रेता को किसी भी भविष्य की तिथि पर हस्तांतरित हो, मीन्स वहां पे जो ट्रांसफर है वो तुरंत ना करके उसको भविष्य की तिथि पर हस्तांतरित करना यदि सहमत किया जाता है तो हम वहां पर ये कहेंगे कि देयर इज एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब प्रॉपर्टी को तुरंत ट्रांसफर करना, और यहाँ पे जब एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं तो वहां पर भविष्य की तिथि पर हस्तांतरित होना निश्चित किया जाता है, तो वो कहलाएगा एग्रीमेंट टू सेल। तो इफ वी टॉक अबाउट द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द सेल एज वेल एज द एग्रीमेंट टू सेल। इफ वी टॉक अबाउट द सेल, in the case of contract of sale, the exchange of goods for money consideration takes place immediately,
But on the other hand, in the agreement to sale, when the contract of sale, the parties to the contract agree to exchange the goods for a price consideration at a future specified date. But if in the case of sale, the sale is absolute transfer. सेल के अंदर प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर किया जाएगा. बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल देयर इज द कंडीशनल ट्रांसफर. About the third difference, that is regarding the contract. In the case of sale, that is the executed contract. But on the other hand, agreement to sale is the executory contract. In the case of sale, the title of the goods transfers to the buyer with the transfer of the goods. जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी, वहां पर जो टाइटल है प्रॉपर्टी का, वहां पर सेल के संबंध में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा. बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, the title of the goods remains with the seller as there is no transfer of the seller. वहां पर ट्रांसफर नहीं हुआ अभी, क्योंकि वहां पे अभी ट्रांसफर होना सहमत हुआ है. इन द केस ऑफ सेल, देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर, बिकॉज क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो बायर के पास ट्रांसफर हो चुकी है, तो यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर. इन द केस ऑफ सेल, वैट इज चार्ज्ड. बट ऑन द अदर हैंड, क्योंकि वहां पे तो अभी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो वहां पे जो एग्रीमेंट टू सेल है वहां पे नो टैक्स इज लेवेड. वहां पे अभी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. इन द केस ऑफ सेल, बायर कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम द सेलर एंड द प्रोप्राइटरी रेमेडी फ्रॉम द पार्टी टू whom the goods are sold. But on the other hand, in the case of agreement to sell, buyer has right to claim the damages only. And the next difference is regarding the case. In the case of sale, right to sue for the price. यहाँ पे जो प्राइस के लिए यदि आप उसने सामने वाली पार्टी ने पे नहीं किया तो उसके लिए आप जो पार्टी है, जो सेलर है, वो केस फाइल कर सकता है. बट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, कि वहाँ पे डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है. तो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द सेल एज वेल एज द एग्रीमेंट टू सेल. जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो सेल है, जो विक्रय या विक्रय का जो समझौता किया जाता है, उसके संबंध में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं. सेक्शन 4 क्लोज 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट सेज दैट, जहां पर विक्रय के अनुबंध में माल का स्वामित्व विक्रय को किसी भी भविष्य की तिथि पर हस्तांतरित होना हो या शर्त के पूरा करने पर निर्भर करता हो, वहां पर उसे विक्रय का समझौता कहा जाएगा. तो यहाँ पे जब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं, इनके अंतर की बात करते हैं, तो इनके संबंध में कुछ अंतर बताए गए हैं. सबसे पहला अंतर आप स्वामित्व के संबंध में ले सकते हैं. जब हम बात करते हैं सेल की, इन द केस ऑफ सेल, विक्रय में क्रेता तुरंत माल का स्वामी बन जाता है. यदि हम विक्रय के समझौते की बात करते हैं, तो इसमें निर्धारित तिथि एवं समय पर समझौते के अधीन संपूर्ण शर्तें पूरी हो जाने पर ही क्रेता माल का स्वामी बन सकता है. सेकेंड डिफरेंस इज रिगार्डिंग द टाइम. जो समय के संबंध में भी इनके संबंध में अंतर है. यदि हम विक्रय की बात करते हैं तो इसमें निष्पादन पूरा हो जाता है एवं निष्पादित अनुबंध होता है, सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. परंतु यदि हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं तो इसमें निष्पादन होने को रहता है, मतलब इसमें एक तिथि निश्चित की जा रही है कि वो निष्पादन अभी किया जाना है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है. अतः इसमें भावी अनुबंध होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. थर्ड डिफरेंस इज रिगार्डिंग द प्राइस कंसिडरेशन. यदि हम प्राइस मूल्य के लिए बात की बात करते हैं, तो सेल के संबंध में यदि हम सेल की बात करते हैं, विक्रय की बात करते हैं, तो यदि क्रेता माल का मूल्य चुकाने में त्रुटि करता है, गलती करता है, उसे नहीं चुकाता है, तो विक्रय उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, विक्रेता उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है. परंतु यदि हम विक्रय के समझौते की बात करते हैं, तो यदि क्रेता माल प्राप्त करने तथा उसके हस्तांतरण मूल्य चुकाने में असफल रहता है, तो विक्रेता जो है वो हट जाने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है. एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द डैमेजेस, जोखिम. अगला जो डिफरेंस है वो जोखिम के संबंध में है. यदि हम सेल की बात करते हैं तो विक्रय हो जाने पर माल का जो जोखिम होता है वो क्रेता पर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बायर के ऊपर होती है, तथा माल मतलब वो अब क्रेता के पास ट्रांसफर किया जाता है. जबकि विक्रय के समझौते के अंदर यदि हम बात करेंगे तो माल का जो जोखिम है वो सेलर के पास होता है, ना कि बायर के पास. एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द क्रेता का दिवालियापन. यदि क्रेता दिवालिया हो जाए तो क्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में क्रेता का खरीदा हुआ माल
आर्टर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया जाता है उसे उसे उसकी स्पुर्दगी देनी पड़ती है जो माल उसने खरीदा था। परंतु यदि क्रेता दिवालिया घोषित हो जाए तो माल के विक्रय का यदि समझौता हुआ है तो वहां पर क्रेता के दिवालिया होने की दशा में विक्रेता माल देने से इनकार कर सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द निष्पादन एग्जीक्यूशन। यदि हम निष्पादन की बात करते हैं तो सेल के संबंध में विक्रय का जो अनुबंध है वो पूर्ण एवं शर्त रहित होता है। यदि हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं तो विक्रेता के समझौते का निष्पादन शर्त के साथ भविष्य में होना निश्चित होता है। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द अनुबंध भंग करने का अधिकार। यदि हम सेल की बात करते हैं तो अनुबंध भंग करने के लिए विक्रेता केवल क्षति के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, डैमेजेस के लिए केवल केस फाइल कर सकता है और क्रेता वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। और यदि हम माल के समझौते की बात करते हैं तो उसके संबंध में अनुबंध भंग की दशा में क्रेता तथा विक्रेता को एक दूसरे के विरुद्ध केवल डैमेजेस के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। एंड द लास्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द विक्रेता द्वारा त्रुटि किए जाने पर। यदि सेलर कोई गलती करता है तो वहाँ पे सेल के संबंध में यदि हम बात करें तो माल देने में त्रुटि करने पर क्रेता केवल डैमेजेस के लिए बल्कि तीसरे व्यक्ति पर भी माल के स्वामी के रूप में वाद प्रस्तुत कर सकता है। और यदि हम माल के उसके समझौते की बात करते हैं, क्रय के समझौते की बात करते हैं तो क्रेता केवल डैमेजेस के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि माल का स्वामी अभी विक्रेता ही है, क्योंकि वहाँ पे तो माल का ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। तो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये मैंने आपको सेल एवं एग्रीमेंट टू सेल के संबंध में डिफरेंस बताए हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। If you have any doubt, then you must put down in the comments section. Don't forget to like,